YouTube family and welcome back to my channel. So today's video is really special. Number one, it's related to the Pahari culture I belong to. As you can see, I'm dressed in my Pahari sadri and wearing this Pahari dhatu. And number two, it's related to the religious belief I believe in, which is the Devta culture of Himachal Pradesh. So let me give you a quick recap of what's happening in this video. So guys, according to Devta culture, जब भी कोई मंदिर complete होता है या renovate होता है, उसका last step होता है कुरुर स्थापना दिवस, which is one of the most important part of the temple. So for example, if this is the roof of the temple, right here एक wooden log रखा जाता है जिसे कहते हैं कुरुर, जो माना जाता है कि most powerful चीज़ है उस टेम्पल की. सो आज है कुरुर स्थापना दिवस द्युंदर मंदिर का, और द्युंदर मंदिर चौपाल की हाईएस्ट पीक है और वहाँ पे माँ काली का मंदिर है. एंड आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड टू शेयर दिस विद यू दैट द एंटायर टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ माई grandfather Mr. Shyam Singh Mehta and is currently being supervised by my dad Mr. Manoj Kumar Mehta. So as my full family is here to witness this historical and culturally rich event, I thought why not record it for my YouTube family. I plan to make this video very informative and historically rich for all of you. So let's see what's there. So today is day 1 and today we'll welcome all our devtas from the region where we belong to. आज सारे देवताज वहाँ पे आएंगे and we'll give them a place और उनकी पूजा होगी, because this is one of the most important event for everyone here, and we are expecting a footfall of 10,000 on the final day, which is tomorrow. So today I'll show you day 1 where I'll take you to Dyundar Mandir. I'll show you what is Dyundar Mandir, what is the history of Dyundar Mandir, and how it started from the scratch and how we completed the temple. And today is the main event, which is the Kurur Sthapna Divas. So I hope you like this video. So watch it till the end because it's going to be really something blissful and culturally rich for all of you. So let's go. So this is the view from my village of Dyundar Mandir temple, which is one of the highest peak of Chopal. So then we started our journey from my village and it took us nearly 1 hour to reach the temple. And the village was all lush green nowadays. And we crossed this beautiful landscape. And then we finally took the turn towards Dyundar Mandir temple, which is on Chopal Road. And as we reached the temple, everyone was so excited to see my grandfather because he's the person behind this temple who started the construction. So let me quickly take you to the preparations. यहाँ सब मिलकर कल के महासमारोह की preparations में जुड़े थे और इस एरिया में खाना बनने वाला था और माना जा रहा था कि कल यहाँ पे 10,000 लोग आएंगे जिनका खाने की तैयारियाँ हो रही थी. और मैं अपने दादाजी के साथ ऊपर जा रही थी and he was so happy to meet everyone because it's all his hard work, and the respect and love he received there was so overwhelming for me too. So this is the entrance of the main mandir area and everyone was preparing because my grandfather was there. And I was so happy to see this, ki how people respect him so much because he has really worked hard for this temple. तू जल्दी आ गया ऊपर. This was another cute moment when my dad welcomed his dad because अब दादाजी ने वज़ीरी आगे पापा को शिफ्ट कर दिए and dad was welcoming my grandfather. And now let me show you the Dyundar Mandir, the famous historical place of Himachal, which is on the top of Chopal. So this is the first temple which is still under construction and will be completed soon. और ये है मेन मंदिर जहाँ पे कुरुड़ होगा और यहाँ ऊपर रखा जाएगा वो वुडन लॉग जिसे कुरुड़ कहते हैं, जिसे मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी. ये मंदिर एक
वन ऑफ द हाईएस्ट पीक पे जिस तरह से स्थापित है, इस मंदिर का व्यू दूसरी चीज़ है जो इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। पहली तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो माता है, जो शक्तियाँ हैं, एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल व्यू यू गेट फ्रॉम द्युंदर मंदिर। सो गाइस, दिस इज़ द अल्टीमेट लोकेशन ऑफ दिस टेम्पल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितनी ही सुंदर जगह पे बना है, और ये रहा हमारा द्युंदर मंदिर। आज डे 1 है। कल इसी मंदिर के टॉप पे, जो कि वो एरिया है, वहाँ ऊपर कुरुड़ लगेगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। सो आप समझ सकते हैं कि इन माता की शक्ति कितनी और कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और आज अब हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमारे इलाके से देवी देवता आने वाले हैं वो यहाँ आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे और उनका स्थान वहाँ अंदर दिया जाएगा और वो वहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। उनकी पूजा होगी, उनका वेलकम होगा, और कल इसी जगह पे होगी कुरुड़ स्थापना। सो लेट मी टेक यू इनसाइड दिस टेम्पल, बिकॉज सिर्फ आज के दिन अलाउड है यहाँ पे जाना, और जैसे ही इस मंदिर में पूजा पाठ हो जाएगा और देवता अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, इस मंदिर की बाउंड्री से अंदर आप लोग नहीं आ सकते हैं। तो सिर्फ आज के दिन हम देख सकते हैं, बिकॉज ये अभी तक यहाँ पे स्थापना नहीं है। और ये जो आप स्टोन आगे देख रहे हैं, यहाँ पे रखी जाएगी माँ काली की पिंडी, जिसकी हिस्ट्री मैं अब आपको बताऊंगी। हाँ जी, हमारे साथ अब श्री रजनीश किमटा जी। सर, आप आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताइए, जिस मंदिर की कैसे स्थापना हुई, कितना कैसे पता चला इस शक्ति का, और क्या शक्ति है इस मंदिर की। देखिए, ये बहुत बड़ी शक्तिपीठ है। कई सौ वर्ष पूर्व यहाँ पर माता ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे कालसी राम मेहता। वो यहाँ से जुब्बल की तरफ जा रहे थे और उनको माँ भगवती ने रास्ते में महिला के रूप में उनसे बात करते हुए उनको दर्शन दिए और उनसे कुछ वादे लिए, और उन वादों को अगर कालसी राम मेहता जी ने पूरा किया, जो माता ने उन्हें कहा, तो आपको माँ की तरफ से ये चीज़ें प्राप्त होगी। तो जो माँ भगवती ने उनको कहा, इनको वो चीज़ें प्राप्त हुई। और उसके बाद कालसी राम मेहता जी ने यहाँ पर इस जगह को पूजा करने के लिए प्रयास शुरू किए। जो प्राप्त हमारे को जानकारी के मुताबिक अलग है, एक जगह हमारी यहाँ, वहाँ से पांडा जो पंडित हैं उनको लाया गया, तब वो पूजा पूरी नहीं कर सके। एक पांडा का देहांत हो गया। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट किया, उसमें भी ऐसा ही हुआ। फिर यहाँ पर हमारा जो अपना ज्योतिष विद्या है उसके हिसाब से पता किया गया, एक बटेवड़ी जगह है यहाँ पर, उस बटेवड़ी में ब्राह्मण जो है उन्होंने अपने सांचा विद्या के द्वारा यहाँ का पता किया कि हाँ, माँ भगवती का बहुत बड़ा स्थान है। और यहाँ पर जो अदृश्य कुछ ऐसी शक्तियाँ, असुरी शक्तियाँ हैं जो पूजा को रोक रही है, उसको पूरा करने के लिए कालसी राम मेहता जी को बोला गया कि आप कड़ासन माता जो है शापड़ा में, उसको यहाँ पर लाए। और इस स्थान पर रियाटना देवता जी और कड़ासन माता और जितने भी हमारे बाकी देवी देवता हैं इस क्षेत्र के, उनके साथ आप आए। जब यहाँ पर कड़ासन का पाँव पड़ेगा, काली रूप में है वो असुर शक्ति वो खत्म करेगी और उसके बाद यहाँ की पूजा हो सकती है। उन्होंने वैसा ही किया और यहाँ की पूजा की। सभी देवी देवता यहाँ आए, कड़ासन माता ने वो असुर शक्ति वो खत्म किया और यहाँ पर बहुत ही दिव्य पूजन के साथ यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की। जो जो लोग इस माँ भगवती को मानते थे उनको बहुत बड़ी यहाँ पर जो है शक्तियाँ प्राप्त होती थी और साथ में रक्षा करती थी माँ भगवती। अब जो इनकी 5वीं पुस्त है, 4थी पुस्त में श्री श्याम सिंह मेहता जी जो कालसी राम जी के पोते थे, उन्होंने यहाँ पर दोबारा से ये काम शुरू किया लोगों के सहयोग के साथ। और माँ की शक्तियों का अनुभव श्याम सिंह मेहता जी ने खुद किया, तो उनको जब पुष्टांत हुए तो उन्होंने यहाँ का बीड़ा उठाया और सभी क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। पिंडी रूप में यहाँ माँ भगवती है, 2 पिंडियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ की मान्यता ये है कि लक्ष्मी और काली रूप में, या दोनों रूपों में माँ भगवती स्थापित है। आज ये समय आ गया है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ और जो पिंडी रूप में माताएं थी उनको स्थापित किया जा रहा है, अलग उनके लिए स्थान बना है।
और जो देवता रेआटना महाराज अजीज खान है, यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है जिसका कुरट लगेगा। और इसी क्षेत्र के हमारे शाफड़ा से कलासन माता, रारो मोर, डोम देवता, जलशर माता, शिरगुड़ महाराज, ये सब लोग यहाँ आएंगे आज और मंदिर में 2 दिन यहाँ रहेंगे। कल यहाँ पे कुरट लगेगा, पिंडियों की स्थापना होगी। और अब जो ये कार्य है, श्याम सिंह मेहता जी के सपुत्र जो रिटायर्ड प्रोफेसर कॉलेज से आए, और उनको ये वजारत जो है ये जनरेशन वाइज जनरेशन आगे जाती है। तो अभी श्याम सिंह मेहता जी की क्योंकि अपनी आयु एक वेटरन ओल्ड एज में आ गए, उन्होंने अपने बेटा जो उनके बड़े पुत्र है मनोज मेहता, उनको संभाल दिया है। और मनोज मेहता की अगुवाई में ये सारा कार्य जो है ये संपन्न हो रहा है। और मनोज जी ने जो है पूरे क्षेत्र के सभी लोगों के साथ संपर्क बांध करके, सबको इकट्ठा करके एक शानदार तरीके से ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम जो है हमारा पूर्ण होने जा रहा है। इसके लिए मनोज जी को भी बहुत बहुत बधाई, और संपूर्ण इनके मेहता परिवार, क्योंकि इनका प्रथम स्थान जो है मां ने इनको चुना था। उसके साथ बहुत लोगों ने इसमें गान किया, और सब लोग माँ भगवती के चरणों में अपना शीश नवा करके कार्य कर रहे हैं। और यहाँ की एक विशेषता मैं आपको खास करके बताऊं कि यहाँ जो माँ की शक्ति है, जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं या जो बड़ी पीठ हमारी कामाख्या माता गुवाहाटी में है, हमने खुद ये अनुभव किया है। चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नैना देवी, बजेश्वरी माता या चामुंडा में है, उसी लेवल का करंट पर ताकत यहाँ पर है। और यहाँ पर माँ भगवती जो है, अभी पिछले 30 सालों में 2 बार ऐसा दृष्टांत हुआ है कि महिला के रूप में, 2 महिलाओं के रूप में अपने दर्शन देती है। और हमें पूर्ण आशा है कि ये स्थान, बहुत बड़ा तीर्थ आने वाले वर्षों में बनने जा रहा है। मैं मनोज मेहता, इस इलाके के सभी देवी देवताओं का वजीर। आज मुझे बहुत ही खुशी का माहौल है। आज शांत समारोह जो आज होने जा रहा है उसकी बरनी है। आज हमारे सभी देवता पूरे इलाके के चूड़धार से स्नान करके 6 बजे के करीब वापस यहाँ पर आएंगे और पूरे समस्त जखोली की जनता 4 मूल का स्वागत 6 बजे इस प्रांगण में करेगी। उसके बाद आरती होगी और उसके बाद जो हमारा ट्रेडिशनल बरनी का प्रोग्राम होता है जिसमें भंडारे का आयोजन है वो होगा। और कल सुबह जो हमारी इस नए मंदिर निर्माण का कुरुट जो लगना है उसके लिए यहाँ से 10 बजे यात्रा शुरू होगी जहाँ कुरुड़ बनने जाएगा। जो कुरुड़ है वो एक हिस्टोरिकल जो पुरानी ट्रेडिशन है उस हिसाब से बनेगा। उसको बनाने वाले जो मिस्त्री है गांव के इलाके के लोग हैं लगभग रात को 1:30 बजे जाएंगे और सुबह तक 11 बजे तक अपने कुरुड़ का बनाने का काम पूरा कर लेंगे। यहाँ से सभी देवी देवताएं जितने हमारे 7 देवी देवता यहाँ शिवगुरु महाराज जोड़ना, रेआटना महाराज, डोम देवता, कड़ासन माता, जड़सर माता, ये सब की पालकियाँ यहाँ से कुरुड़ के पास जाएगी। वहाँ से 11:30 बजे यहाँ के लिए आएगी और 1 बजे जो हमारे पुरोहितों ने पंडितों ने टाइम निकाला है कुरुड़ लगने का तो 1 बजे ठीक हमारे कुरुड़ लग जाएगा। उसके बाद देवता लोग इसी में जो ये आप देख रहे हैं इसी मंदिर में विराजमान होंगे और उसके बाद वो भंडारे की परमिशन देंगे। और कल पूरे समस्त चौपाल से लगभग 10,000 लोगों के आने की यहाँ उम्मीद है। और प्रशासन चौपाल के जो हमारे एसडीएम साहब है, बीडीओ साहब है, एक्सीएन सभी लोगों ने, डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस कार्यक्रम को हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा करेंगे। समस्त जखोली जनता के सहयोग से इस कार्य को पूरा करेंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें पूर्ण सफलता प्रदान करे। मैं जब यहाँ पर आया मेरे साथ बंसी लाल काल्टा जी और क्या नाम था रामचंद्र जी आए। हम 3 आदमी आए, पेड़ के नीचे बैठे। उस वक्त यहाँ पर कोई उसका ठहरने का इंतजाम नहीं था। हम एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और सारी रात भर आग जलाकर हमने यहाँ पर एक किस्म से तपस्या बोलो या चाहे कुर्बानी थी वो, हम यहाँ रात काटी और हम सुबह यहाँ से निकल गए, ठोक गए और वहाँ पर जाके
हमने डिक्लेयर कर दिया कि ना वहाँ मंदिर बन सकता है, ना ही वहाँ पर कोई काम हो सकता है, क्योंकि वो तो बड़ी कठिन जगह है। तो फिर उसके बाद फिर हम वही ठोक में लगे रहे कि बनना तो चाहिए, ऊपर आते रहे, नीचे आते रहे। फिर हम यहाँ आते रहे। उसके बाद एक हमने छोटा सा कमरा बनाना शुरू किया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर महीने में कभी आते रहे, कभी 2 महीने में आते रहे। फिर कुछ हमारे को भी झुकाव हो गया यहाँ से कि भैया कुछ करना चाहिए, तो हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर बड़ा। फिर यहाँ एक गुज्जर लटक गया था ढांक में, यहाँ वो कहीं यहाँ आया, वो पता नहीं कुछ करना चाह रहा था, तो वो उसको माता ने लटका ही दिया यहाँ पर। उसके बाद ये बड़ी प्रसिद्ध हो गई कि हम वहाँ तो उल्टा सुल्टा काम कोई हो नहीं सकता। फिर हमने अपना कहाँ से हम चलाते गए, कुछ गवर्नमेंट से मदद ली, कुछ हमने खुद कंट्रीब्यूशन किया। ये अब हम यहाँ तक पहुँचे कि अब यहाँ पर सब चीज़ें सेट है, जो नहीं है वो भी हो रही है। भी यहाँ आया करता था। उस वक्त यहाँ जंगल था, डर लगता था, भालू वगैरह भी यहाँ आते थे। फिर इन्होंने मेहता जी ने दृढ़ता बांधी, मेहता श्याम जी ने, कि हमने यहाँ बनाना ही है, हमने यहाँ बनाना है, मंदिर ही बनाना है। बस उस दृढ़ता से फिर तो लोग आते रहे, सहायता करते रहे। So after interviewing all the elders and giving the right information, I would also like to show you this magical view of चूड़धार Peak from दियोंदर मंदिर। So इस मंदिर के बिल्कुल सामने है चूड़धार महाराज का मंदिर and these are the dancing clouds। यहाँ का मौसम समय के साथ बहुत सुंदर होता गया और इसी बीच हम अपने देवताओं का वेट कर रहे थे और अब मैं आपको दिखाऊंगी देवता स्वागत। और इसके बाद सभी देवताओं को उनके स्थान पे ले जाया गया जहाँ पे उनको रखा जाएगा और आज की पूजा की जाएगी और कल उन्हें मंदिर में रखा जाएगा। इसके बाद हमने माता की आरती करी। और आरती के बाद हुआ देवतों की आरती और पूजन। With this we come to the end of day 1 of कुरुड स्थापना at दियोंदर टेम्पल। और कल इस टेम्पल पे इस जगह पे लगेगा कुरुड, जो एक कल्चरली और हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।